Okay, so basically, team is a group of people with different skills and different tasks. Different skills because the capabilities, the skills, the cognitives of every individual are different. The skills that every individual is having are different. The education, the trainings he received are different from one another. And the task means within the group or within the team, the things are the tasks which are being assigned to everyone, to every individual, to every member of the team are supposed to be different, who work together on a common project. The thing which is common amongst all is the objective of the team. The ultimate objective for which all these individuals are working with synergy, with cohesiveness, is that target or that goal of the team. As you guys said, कि वो अगर अकेले काम करेंगे तो वो गोल अचीव नहीं होगा या उसमें प्रॉब्लम्स होंगी. तो कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिनके लिए ज़रूरी होता है कि हम एक टीम फॉर्म करें. With a meshing of functions and mutual support. What do we mean by the term meshing here? Don't know, ma'am. Meshing means mixing up, because there would be different functions, different tasks assigned to every individual, different functions or responsibilities they are supposed to perform, and all these functions are interrelated, interdependent on each other. एक टास्क परफॉर्म होगा तो दूसरा होगा. ए अपना काम जिम्मेदारी से करेगा तो फिर बी अपना काम करेगा, और इंटर रिलेटेडली चीजें चलती जाएंगी विथ म्यूचुअल सपोर्ट. यानी हर मेंबर को दूसरे मेंबर की सपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि उनका जो काम है रिलेटेड टू देयर गोल, रिलेटेड टू देयर टास्क, वो इंटर रिलेटेड है. वो एक दूसरे के जिम्मेदारियों के ऊपर और एक दूसरे के टास्क के ऊपर डिपेंड करता है. Okay. Team is a group of individuals all working together for a common purpose. जो असाइंड गोल है, जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है टीम का, वो सभी को उसी के लिए कंट्रीब्यूट करना है. दे ऑल आर सपोज टू डायरेक्ट देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीविंग दैट पर्टिकुलर गोल. हनान, आप अपना माइक बार बार क्यों खोल रहे हैं? मैं बार बार आपका माइक ऑफ कर रही हूँ, आप खोल रहे हैं. So we were talking about the common purpose of the team, कि जो भी इंडिविजुअल की एफर्ट्स होती हैं वो उसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए होती हैं, जो सबके लिए. व्हाट्स प्रॉब्लम हनान? वो गोल सबके लिए एक कॉमन टारगेट होता है, और हर एक को उसी गोल, उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपनी एफर्ट्स इनपुट करनी होती हैं टीम के अंदर रहते हुए. The individuals comprising a team ideally should have common goals. जाहिर है जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं एक टीम के, उन सब के गोल या उन सब का गोल, इधर देयर कुड बी मल्टीपल गोल्स, देयर कुड बी अ सिंगल गोल, तो वो कॉमन होने चाहिए. जब भी उनके एफर्ट्स जो है उनके अंदर एक साइनर्जी आएगी, एक कोहेसिवनेस आएगी, और वो सभी एक ही डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स लगाएंगे और उस ऑब्जेक्टिव को, उस गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे. Common objectives and more or less think on the same lines. Definitely, in order to direct your efforts into similar lines, you need to think upon same lines. हम हमारे जो सोचने का अंदाज होगा या चीज़ों को परसीव करने का होगा, वो भी more or less should be alike amongst all team members. जितने भी members हैं उन सब का जो thinking process है वो similar होना चाहिए, same lines पे उनको सोचना चाहिए, ताकि उनके जो efforts हैं वो out of the way नहीं जाएं और focused रहें अपने goal के ऊपर.
Okay, a team become more than just a collection of people when a strong sense of mutual commitment creates synergy. So when we are saying just a collection of people means simply 10, 8, 15, 20 uh, individuals are collected without having any objective. लोग तो जमा हैं, हम कह रहे हैं कि जो टीम है that is collection of individuals, that is association of individuals. Okay, so we were discussing about the team, that a team becomes more than just a collection of people. जब तक mutual commitment नहीं होती है, mutual commitment means every brain within that team works upon the similar line. वो एक म्यूचुअल कमिटमेंट है, सबके सबके एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है कि सबने इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करना है, तो वो एक म्यूचुअल कमिटमेंट है. अगर वो नहीं है, वो म्यूचुअल कमिटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती है टीम मेंबर्स के बीच में, तो वो जो टीम है वो टीम नहीं कहलाएगी. दैट वुड बी different elements in a particular environment or combination. Here in team we mean that the minds of different individuals are working in similar direction on the same pattern smoothly in a particular environment of that team in which they are surviving. Got it? Okay. Okay. So synergy is most important element when we are talking in terms of team, because वो smoothness, वो similarities अगर team के अंदर exist नहीं करेंगी तो definitely conflicts raise होंगे, क्योंकि मुख्तलिफ individuals काम कर रहे हैं मिलके, और उनके अंदर अगर synergy नहीं है तो definitely उनके अंदर difference of opinion आएंगे, conflicts raise होंगे, problems होंगी. तो फिर वो जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है टीम को फॉर्म करने का, बनाने का, वो अचीव नहीं हो पाएगा. ओके, नाउ आई वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस दैट can you differentiate team and group, or do you think that is there any difference between both of these terms? Teams and groups are different from one another, or both are same and we can use them as alternative terms? मैम ग्रुप तो बहुत सारे हम लोग जमा हो रहे हैं, कोई पर्पस नहीं है हमारा, ऐसे ही हम जमा हो रहे हैं तो उसे ग्रुप कहेंगे. टीम के हमारा कोई पर्पस भी है और हम जमा है, डिफरेंट स्किल्स के लोग हमारे पास टीम में मौजूद हैं. अच्छा, आप कह रहे हैं कि ग्रुप में कोई पर्पस नहीं होता है, यानी कि जो हमने पीछे एक टर्म यूज किया कि सिंपल कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, तो ग्रुप इस तरह से है. यस मैम. assemblage of a person who work, interact and cooperate with one another in achieving a common goal in a specific period of time. Till here you can say that team and group both are same, क्योंकि इस डेफिनेशन को देख के हमें कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये टीम से कहीं अलग है. यस मैम. बिल्कुल यहाँ तक सेम चीज आ रही है. ग्रुप इज एन असेंबलेज ऑफ पर्सन्स, लोग, इन बंदों की, लोगों की गैदरिंग है, हु वर्क, इंटरेक्ट एंड कोऑपरेट, जो कि काम करते हैं, मिल के रहते हैं विथ one another for achieving a common goal within a specific period of time. The identity of the group members is taken individually. Here the difference point came. Okay, टीम के अंदर क्या है कि जितने भी टीम के मेंबर्स हैं उनको एज एन इंडिविजुअल कंसीडर नहीं किया जाता. उनके सारे एक्शंस, उनकी आइडेंटिटी, उनकी एग्जिस्टेंस, सब कुछ इंटर रिलेटेड होता है, इंटरडिपेंडेंट होता है. हर एक का काम एक दूसरे के काम से डिपेंड कर
से जो है मुंसलिक होता है। लेकिन ग्रुप में क्या होता है कि आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप मेंबर इज टेकन इंडिविजुअली। ग्रुप के अंदर हर मेंबर की अपनी अलग जो है वो एक आइडेंटिटी होती है, अलग रोल होता है और अलग गोल होता है। The members share information and resources with other group members. वो जो काम करते हैं, जो इंफॉर्मेशन लेते हैं, जो उनकी एक्टिविटीज हैं, वो इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। In an organization, the groups are made on the basis of common interests, beliefs, experiences in common fields and principles, so that they can easily coordinate with each other. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जिन बुनियादों पे, जिन बेसिस पे ग्रुप्स फॉर्म होते हैं, वो नॉर्मली ये होती हैं कि कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन बिलीफ, कॉमन एक्सपीरियंस। कॉमन एक्सपीरियंस यानी एक ही फील्ड के अंदर, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर कुछ लोगों ने काम किया है तो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए उनका ग्रुप बना दिया गया। जैसे आपको ग्रुप असाइनमेंट्स मिलती हैं, एक ही सब्जेक्ट में एक ही क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो एक ग्रुप टास्क दे दिया, ग्रुप असाइनमेंट दे दी, like that. Okay, now there are two kinds of groups, formal groups and informal groups, supposed to be created by individual or by the management of organization. Willingly in groups को create किया जाता है for the sake of performing any particular task or objective. Innovations लाई जा सकती हैं, तो उसके लिए वो willingly एक group form करेंगे जहाँ से रिसर्च डिपार्टमेंट में से कुछ लोग लेंगे, प्रोडक्ट डिज़ाइन में से कुछ लोग लेंगे, फाइनेंस में से कुछ लोग लेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में से कुछ लोग लेंगे और इस तरह से एक टीम फॉर्म करेंगे जो कि काम करेगी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर। परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क, उनका देयर ऑब्जेक्टिव वुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट कि क्या करना है एग्जैक्टली, कब तक करना है, वो टारगेट उनका कब अचीव होगा और टीम जो है वो कब डिमोलिश होगी या उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इनफॉर्मल ग्रुप्स वो हैं जो कि नेचुरली यानी कि विदाउट एनी ह्यूमन एफर्ट्स फॉर्म हो जाते हैं, जस्ट लाइक योर सोशल ग्रुप्स, जस्ट लाइक योर फ्रेंडशिप सर्किल। आप जब आप क्लास में आए थे और आहिस्ता आहिस्ता आपका फ्रेंड सर्किल बन गया था, तो वो आपने डेलिबरेटली या कोई पैरामीटर्स जहन में रखते हुए नहीं आप अपने दोस्त बनाए होंगे। वो एक नेचुरल इन्वायरमेंट के तहत स्लोली एंड ग्रेजुअली किसी के साथ आपकी इंटरेक्शन ज़्यादा हुई, किसी के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी आपको मिलते हुए नज़र आई, तो फिर इस तरह से होते होते आपका फ्रेंड सर्किल डेवलप हो गया। तो इस तरह के जो सोशल ग्रुप्स होते हैं जो कि ह्यूमन साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए बनते हैं, वो इनफॉर्मल ग्रुप्स में आते हैं, बिकॉज दे आर नॉट बीइंग क्रिएटेड बाय ह्यूमन बट दे come into existence in a particular in a natural environment without any human efforts, वो फॉर्म हो जाते हैं खुद ही, तो इसलिए उनको इनफॉर्मल ग्रुप्स कहा जाता है। Got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, now definition of team: a group of people who are joined for achieving a common goal within a stipulated period, having collective accountability, यानी उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहली बात तो ये है कि उनका जो गोल है वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, एंड दैट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड कि कब तक है, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, कितने अरसे के लिए। हैविंग कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है, जो जवाबदारी है, वो सबकी कलेक्टिव है। यानी कि ऐसा नहीं कि एक टीम के अंदर अगर एक इंडिविजुअल, एक मेंबर करप्ट हो जाता है या वो कोई मिस्टेक करता है तो बाकी मेंबर्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे नहीं है। दे ऑल आर अकाउंटेबल, आंसरेबल फॉर ईच अदर्स एक्ट्स इवन। उनके एक्ट्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सभी इंटर रिलेटेड है और इंटर डिपेंडेंट है।
The agenda of the team is one for all and all for one. एक ही रूल है जो सबके लिए एप्लीकेबल है. अगर एक चीज़ लीगल है और करी जा सकती है तो वो रूल सबके लिए अप्लाई होता है, और अगर कोई चीज़ प्रोहिबिटेड है एंड नॉट सपोज टू बी डन विद इन द प्रीमिसेस ऑफ टीम तो वो सबके लिए वो एप्लीकेबल है. Apart from sharing information, the team members also share the responsibility of the team task. ग्रुप के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि दे डू शेयर द इंफॉर्मेशन विद अदर मेंबर्स, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंटरडिपेंडेंट नहीं है. व्हेन वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ग्रुप, टीम के अंदर ये है कि इंफॉर्मेशन तो शेयर की ही जाती है, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसीलिए हमने ऊपर डिस्कस किया कि उनकी अकाउंटेबिलिटी भी शेयर्ड है. दे आर हैविंग अ कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी. तो जाहिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी शेयर्ड है विथ ऑल द मेंबर्स ऑफ टीम. द टीम इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम. जो भी नताइज निकलते हैं, आपने अपने एफर्ट्स दिए, आपने टीम को बिल्डअप करने की कोशिश की होगी इन द कैपेसिटी ऑफ टीम लीडर और मैनेजर, तो जो भी आउटकम्स आते हैं पूरी टीम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, आंसरेबल होगी. The team members have a mutual understanding with other members. क्योंकि their responsibilities are interdependent, their accountability is interdependent. So definitely the team members have a mutual understanding with others. जितने भी टीम मेंबर्स हैं उन सब की एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, जबकि ग्रुप्स के अंदर ये चीज़ नहीं है. ग्रुप के अंदर हम एक इंडिविजुअल को एज एन इंडिविजुअल ही देख रहे हैं, उनकी जो आइडेंटिटी है वो एज अ इंडिविजुअल ही है. लेकिन यहाँ पे इन केस ऑफ टीम मेंबर्स की आइडेंटिटी इंडिविजुअल नहीं है, उनकी हर एक चीज़ म्यूचुअल है, हर एक चीज़ इंटरडिपेंडेंट है विद अदर मेंबर्स ऑफ टीम. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ टीम इज साइनर्जी. साइनर्जी को हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं. जाहिर है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो ही साइनर्जी क्रिएट हो सकती है. साइनर्जी को हमने क्या डिस्कस किया कि एक स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स वर्किंग इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. एलिमेंट से हमारी यहाँ पे मुराद हम सपोज कर लेते हैं ह्यूमन ब्रेन्स, ह्यूमन माइंड्स, ह्यूमन फीलिंग्स, इमोशंस, यू नेम इट. तो एक टीम के अंदर मल्टीपल लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, से दैट. तो उन सब की आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी. They all are capable of understanding each and one another. तो ही साइनर्जी क्रिएट हो सकती है, तो ही वो इस कैपेसिटी में आ सकते हैं कि स्मूथली एक साथ काम कर सके टुवर्ड्स अचीविंग दैट सिंगल ऑब्जेक्टिव और गोल दैट हैज बीन असाइन्ड टू ऑल ऑफ देम. Are you getting me? Yes, ma'am. Okay. The team can achieve much more as the member can achieve individually, obviously. जहाँ पे एक इंडिविजुअल एफर्ट करेगा उसके कंपैरिजन में अगर एक टीम मिलके एफर्ट करेगी तो द आउटकम्स विल बी ग्रेटर फॉर द टीम, एंड दैट इज ऑब्वियस. ठीक है, साइनर्जी आपको समझ आ रहा है? ग्रुप और टीम का जो मेजर डिफरेंस है वो आपको समझ आ रहा है? टीम के अंदर हर Yes, एक ma'am. चीज इंटरडिपेंडेंट है. एक मेंबर के एफर्ट्स दूसरे मेंबर के एफर्ट्स से रिलेट करते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं. उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लाजमी है. ये बहुत ज़रूरी है कि वो एक दूसरे को समझते हों, एक दूसरे के लाइंस ऑफ थिंकिंग क्या हैं, पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग क्या हैं, वो समझते हों सभी एक दूसरे के. इस जब भी उनके अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक साइनर्जी का एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकेगा, और तभी ये हो सकेगा कि वो स्मूथली अपने टास्क के ऊपर काम कर सकें, कलेक्टिवली कर सकें, बिकॉज दे हैव टू मूव कलेक्टिवली इन केस ऑफ टीम. Like cricket team for accomplishing a project, team of doctors or management team in any business organization. Now suppose what
will be the situation if there is no synergy in a cricket team. क्रिकेट टीम या किसी भी स्पोर्ट्स की टीम, किसी भी गेम को हम उठा लें, उसकी टीम के अंदर अगर साइनर्जी नहीं है, और हम सपोज करें कि वो टीम नहीं है, वो ग्रुप है एक्चुअली, तो हाउ विल दे? मेंबर्स इन ग्रुप्स आर इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द acts of other members of the group, whereas in case of team, each and every member is responsible, answerable for the acts of other member as well. अगर एक प्लेयर टीम के अंदर अच्छा नहीं खेलता है तो सारी ही टीम को ले डूबेगा और सभी को उसका ऑल दे विल बी कंसीडर्ड एज आंसरेबल कि क्या प्रॉब्लम हुई, किस वजह से ये हुआ। प्रोसेस ग्रुप के अंदर क्या होता है कि whenever they are supposed to achieve any target or task, they discuss, they decide and then they delegate. किसी भी इशू के ऊपर वर्कआउट किया जाता है और फिर आखिर में जो है अथॉरिटी डेलीगेट कर दी जाती है। यानी ग्रुप के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो डिस्कस करते हैं किसी इशू को, कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और फिर प्रपोज कर देते हैं सॉल्यूशन ग्रुप लीडर को। लेकिन टीम में क्या है, टीम के अंदर अथॉरिटी है, they have to discuss, they have to decide, and at the end they have to do, they have to practically perform the task, whatever they can do, whatever they find suitable for achieving their particular objective. उनको ये पावर है, उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो एक्शन ले सकते हैं। जो भी मैम ग्रुप का प्रोसेस दोबारा समझाएगा, ये समझ नहीं आ रहा। ग्रुप में ये है कि वो एक्शन नहीं ले सकते, वो प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं कर सकते चीज को। ग्रुप मेंबर्स, डिसीजन मेकिंग ग्रुप मेंबर्स के हाथ में नहीं होती है। डेलीगेट का मतलब ये है कि किसी और को पावर्स डेलीगेट करना, किसी और को अथॉरिटी दे देना। लाइक वी कैन से दैट अ पर्सन हैव chosen or delegated by a group to behave like a spokesperson. यानी आप अपने बिहाफ पे अपना रिप्रेजेंटेटिव किसी और को बनाओ, या अपनी अथॉरिटी, अपने राइट्स किसी और को डेलीगेट कर दो, किसी और को दे दो, तो वो हम कहते हैं डेलीगेट। तो यहाँ पे ग्रुप में ये है कि वो लोग एट द एंड सब कुछ करके जो अथॉरिटी है वो डेलीगेट कर देते हैं हेड ऑफ ग्रुप को। ठीक है। यानी उनके पास अथॉरिटी नहीं है एक्शन लेने की, चीजों को प्रैक्टिकली करने का उनके पास पावर या डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं होती है इन केस ऑफ ग्रुप। बट टीम के अंदर ये है कि दे हैव दीज राइट्स, दीज पावर्स, वो खुद डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। क्लियर ईमान? यस मैम। ओके, देन वर्क प्रोडक्ट। ग्रुप में इंडिविजुअलिटी है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, उनकी आइडेंटिटी भी इंडिविजुअल है और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी इंडिविजुअल होती है। टीम के अंदर कलेक्टिव होती है। इसका मतलब ये है कि टीम के अंदर अगर 5 लोग हैं और उसमें से 4 अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो भी आउटपुट जो अचीव होगा तो वो ये नहीं कहा जाएगा कि इन 4 लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, कहा जाएगा कि टीम ने अच्छा काम किया है। Focus on accomplishing individual goals. This is why we can't say that we are having a cricket group, but we are having a cricket team. क्योंकि accomplishment की जब हम बात करते हैं तो ग्रुप के अंदर इंडिविजुअल होती है, इंडिविजुअल गोल्स और इंडिविजुअल टास्क पे फोकस होता है हर एक का। ग्रुप के अंदर जो टास्क हैं वो भी इंडिविजुअल होते हैं और टीम जो है वो उसका फोकस होता है टीम का जो कलेक्टिव गोल है उसको अचीव करने के लिए। लेट्स सपोज ग्रुप की बात करते हैं, जो एसोसिएशंस होती हैं
डिफरेंट एसोसिएशंस होती हैं, जैसे बिजनेस एसोसिएशन या ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन, टीचर्स एसोसिएशन, ये जो डिफरेंट एसोसिएशंस होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, ये अच्छा आप मुझे बताइए कि ये टीम होती हैं या ये ग्रुप होते हैं? अब देखें, अगर किसी शहर के अंदर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन है, इसे उर्दू में इसके लिए कोई पर्टिकुलर टर्म होता है, यूनियन सॉर्ट ऑफ इस तरह की चीजें होती है, ट्रांसपोर्टर्स यूनियन अगर है तो वो ग्रुप होगा या वो टीम होगी? मैम वो ग्रुप होगा। अच्छा, क्यों, किस बेसिस पे? यस सरमत। मैम क्यों सब इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, जितनी यूनियन है सब इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। उनके अपने इंडिविजुअल टास्क होते हैं जो उनको अचीव करने होते हैं, लेकिन सर्टेन इंटरेस्ट उनके कॉमन होते हैं और अपना बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वो इस तरह के एसोसिएशंस, यूनियंस और ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन उनका कोई ऑल द टाइम कोई कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। इन सम पर्टिकुलर सिचुएशंस हो भी सकता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टर्स यूनियन या एसोसिएशन की अगर बात करें तो फ्यूल रिलेटेड कोई डिसीजंस ऐसे गवर्नमेंट कर रही है कि जिसकी वजह से उन पे इम्पेक्ट पड़ रहा है, तो इस तरह से उनका कोई कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव हो सकता है। लेकिन नॉर्मल सिचुएशंस में उनके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो डिफरेंट यूनियंस और इस तरह के ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं। या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स के अंदर टीचर्स एसोसिएशन होती हैं, डॉक्टर्स एसोसिएशंस होती हैं, वो भी सभी जो है ग्रुप्स में आते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स एसोसिएशन में हर इंडिविजुअल अपने जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एफर्ट्स कर रहा होता है, लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, अपनी वॉइस रेज करने के लिए वो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। ठीक है। yes, और टीम की जब हम बात करते हैं तो टीम में हर एक चीज इंटर रिलेटेड होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी एक्टिविटीज, उनकी आइडेंटिटी म्यूचुअल होती है, उनका जो फोकस होता है वो कलेक्टिव गोल के ऊपर होता है, जस्ट लाइक अ क्रिकेट टीम और एनी स्पोर्ट्स टीम। Got it? I hope now the difference between group and team would be much more clear. yes ma'am. Yes, ma'am. Okay, then the accountability. Accountability भी ग्रुप के अंदर इंडिविजुअल है, यानी every individual will be responsible for his or her own acts, जबकि टीम के अंदर इधर इंडिविजुअली और म्यूचुअली, इंडिविजुअल भी हो सकती है और कलेक्टिव भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। So these were some points of difference between group and team. Okay, the group produce individual work products as opposed to the team who produce collective products. Obviously, the process of a group is to discuss the problem. जैसे हमने यहाँ पे प्रोसेस देखा था, डिस्कस, डिसाइड एंड डू, और ग्रुप के अंदर है डिस्कस, डिसाइड एंड डेलीगेट। So the process of a group is to discuss the problem, then decide and finally delegate the task to individual members. अब इस बात को जो हमने सिनेरियो डिस्कस किया है डिफरेंट यूनियंस का, ट्रांसपोर्टर्स यूनियन, डॉक्टर्स यूनियन, जो भी इस तरह के एसोसिएशन है, उनमें इस बात को पुट ऑन करके देखें कि आया ये प्रैक्टिकली फिक्स होती है वहाँ पे। प्रोसेस ऑफ अ ग्रुप इज टू डिस्कस द प्रॉब्लम एंड डिसाइड, देन फाइनली डेलीगेट द टास्क टू इंडिविजुअल मेंबर्स। Are you getting my point? Are you getting what I am trying to ask you? Sarmad, is anybody there? yes ma'am. yes. हम ग्रुप की बात कर रहे हैं कि ग्रुप का प्रोसेस ये होता है
कि वो पहले प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, सॉल्यूशंस पे वर्कआउट करते हैं, फिर अगर डिसाइड भी हो जाता है कि ये सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन उस डिसीजन को लेने की जो अथॉरिटी है वो इंडिविजुअल मेंबर्स को डेलीगेट कर दी जाती है. इज इट सो? यस मैम. यस मैम. जैसे मैम ये डिस्कस करते हैं, डिसाइड करते हैं, फिर अपने लीडर्स को या अथॉरिटी को, मैनेजमेंट को बताते हैं. इनमें विलिंगनेस नहीं होती क्योंकि ये टीम की तरह काम नहीं कर रहे होते, इंडिविजुअल होते हैं ये लोग. टीम में डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं, डिसाइड करते हैं, फिर उस टास्क को अचीव भी करते हैं. अच्छा, ओके. ईमान? मैम इसके अंदर ये मेरा डिसाइड करते हैं, फिर बताते हैं कि इतना जो उन्होंने डिसाइड किया होता है वो अपने ग्रुप में जो लीडर होता है उसको बताते हैं, फिर उसके बाद आई थिंक डिसीजन लेता है. और टीम के अंदर वो काम डायरेक्ट अगर डिस्कस हो जाता है तो फिर वो करना शुरू कर देते हैं. अच्छा, सही. अप टू सम एक्सटेंट यहाँ पे ये है कि जो डिसीजन मेकिंग है वो भी इंडिविजुअल ही होती है. तो ईदर द इंडिविजुअल इज विलिंग टू डू दिस और दैट और नॉट, वो डिपेंड करता है उसके अपनी विलिंगनेस के ऊपर कि वो पर्टिकुलर एक्शन जो डिसाइड हुआ है वो लेना चाह रहा है या नहीं लेना चाह रहा. दैट डिपेंड्स ऑन दैट इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द ग्रुप. वो कलेक्टिव डिसीजन नहीं होगा. On the other hand, a team discuss the problem, then decide the way of solving it and finally do it collectively. जो भी measures लेने हैं, जो जिस भी decision को accomplish करना है वो collectively ही किया जाएगा. और जितने भी team members हैं उन सब का contribution होगा उसमें, उन सब की willingness होगी, because there is mutual understanding amongst all team members. लेकिन group के केस में individualism ज़्यादा exist कर रहा है. वहां पे इंडिविजुअल आइडेंटिटी है. ठीक है? यस मैम. यस मैम. ओके. Now here are some similarities between group and team, and these are very common to understand. I think there's no need to discuss them. Similarities: two or more than two persons. Obviously group हो चाहे team हो, कम से कम दो लोग होंगे या फिर दो से ज्यादा होंगे. ठीक है? इंटरेक्शन ऑफ मेंबर्स, चाहे ग्रुप हो चाहे टीम हो, वहाँ पे मेंबर्स की आपस में इंटरेक्शन होती है. मतलब इंटरेक्शन मीन्स दे हैव टू शेयर द आइडियाज, दे हैव टू शेयर द tasks, what they are supposed to work upon, they have to share their activities, they have to share their thought process. Face to face relationship, यानी कि every individual has to uh, has to have some relationship with other individuals. जितने भी members हैं उन सबको एक दूसरे के उन सबका एक दूसरे को जानना और interaction रखना, identify करना, ये सब दोनों के अंदर होता है. Focus on the achievement of an objective, definitely दोनों ही cases में, चाहे group हो चाहे टीम हो, एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव होता है जिसको अचीव करने के लिए दोनों काम करते हैं, ग्रुप भी और टीम भी. दोनों के केस में लीडर जरूर होता है, कहीं पे सिंगल लीडर होता है, कहीं पे एक से ज्यादा होते हैं. ग्रुप की बात करें तो सिंगल लीडर होता है और टीम में एक से ज्यादा भी लीडर्स हो सकते हैं, बट देयर इज सपोज टू बी अ पर्सन हु डायरेक्ट द टीम और द ग्रुप, वट एवर द केस मे बी, जो कि मैनेज करता है, जो ऑर्गेनाइज करता है, जो लीड करता है, जो गाइड करता है, जो सपोर्ट करता है टीम एफर्ट्स को या ग्रुप एफर्ट्स को. शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं टीम के या ग्रुप के, और उन रिसोर्सेज में इंफॉर्मेशन भी ऑब्वियसली आती है, वो भी रिसोर्स है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. तो इन सारी चीज़ों की शेयरिंग दोनों केसेस में होती है, चाहे टीम हो चाहे ग्रुप हो. Okay, now teamwork process.
टीम किस तरह से फॉर्म होती है और किस किस फेजेस से गुजरती है और किस तरह से उसका वर्किंग प्रोसेस है. The first phase is transition process. The second one is action process, and then interpersonal process. Action process, transition process, interpersonal process. Okay, so transition process is teamwork activities based on preparation for future activities. As the name indicates, transition process, this is the first and commencing phase for team process, जहाँ पे लाइनअप होती हैं सारी चीजें, actions लाइनअप होते हैं. Obviously, when the team is going to be formed, that means the objective would be very much clear for all the team members. टास्क क्या है, अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टीम बनाई गई है तो वो प्रॉब्लम ऑब्वियसली क्या है वो क्लियर होगा. तो फिर काम होगा उन लाइंस पे कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से होगा, किस तरह के रिसोर्सेज चाहिए, किस तरह का ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, किस तरह की बाकी चीज़ें चाहिए, एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए, प्रोसेस क्या होना चाहिए, टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए. ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रांजिशन प्रोसेस में होती हैं एट दैट टाइम. यानी हर एक चीज़ अभी उससे डिसीजन प्रोसेस से गुजर रही है, डिसाइसिव नहीं है, लेकिन अभी चीज़ें डिसाइड होने जा रही हैं कि लाइन ऑफ एक्शंस और डायरेक्शंस क्या होंगी. दैट इज ट्रांजिशन प्रोसेस फॉर अ टीम. अब ट्रांजिशन हो गई यानी कि फॉर्मेशन हो गई, चीज़ें लाइन अप हो गई. अब करते हैं बात हम एक्शन प्रोसेस की. तो एक्शन प्रोसेस बेस्ड ऑन दैट क्या होगा, ट्रांजिशन हो गई है. नाउ द सेकेंड फेज ऑफ टीम of a newly established team has started, that is action process. उसमें क्या होता है? हमने डिसाइड किया अब उसको एक्ट में तब्दील करेंगे. यस सर, हम डिसाइड करेंगे एक्शन अब कैसे करना है. अब वो फैसला तो एक ले लिया, अब उसको एक्शन में कैसे तब्दील करना है. चीज़ों को, डिसीजंस को मटेरियलाइज करना है. जो प्लानिंग हुई है ट्रांजिशन के अंदर, उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना है. Paying attention to goal related information and making sure those goals are reached. चीज़ों को ना सिर्फ डूएबल फॉर्म में लेके आना है, उन पे काम करना है, उनको मटेरियलाइज करना है, और इस हद तक करना है कि वी आर सपोज टू मेक श्योर दैट आवर गोल्स आर नाउ गोइंग टू बी अचीव्ड. हमारे जिन डायरेक्शंस के ऊपर हम काम कर रहे थे वो बिल्कुल सही हैं और हम अपने गोल को अचीव करने की तरफ जा रहे हैं. Interpersonal process, manner in which team members manage their relationship or thought process, relations throughout the action and transition process. Interpersonal लफ्ज़ का मतलब आप you guys should be very much clear about it. Interpersonal में एक दूसरे को समझना. Interpersonal means in between human beings, in between persons. जो टीम मेंबर्स हैं, जो इंडिविजुअल हैं, उन पर्सन्स के बीच में किस तरह के रिलेशंस हैं. द मैनर इन विच टीम मेंबर्स मैनेज देयर रिलेशनशिप, उनके बीच कंपैटिबिलिटी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है. अगर नहीं है तो दे हैव टू क्रिएट इट, because we have discussed that synergy is most important feature for this successful team. Synergy yani mutual understanding, mutual cohesiveness, smoothly working capability of a team members to smoothly work upon similar directions. ये सब चीज़ें synergy में आती हैं. तो ये जब भी होगा जब interpersonal relationships are very sound and going in a smooth way. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है टीम के अंदर के जो इंटरपर्सनल प्रोसेस है वो किस हद तक हेल्दी है और कोहेसिव है ऑर्गेनाइजेशन के टीम के अंदर. Now here are some characteristics of effective teamwork.
यानी ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि एक टीम को इफेक्टिव टीम बनाती हैं. And these are shared values, mutual trust, inspiring vision, skills, and reward. Shared values, a common set of beliefs and principles about how and why the team members will work together. There are some protocols of every team, of every association, of every group, every you can say every association or affiliation of individuals. There are always certain values. अगर आपका कोई सोशल ग्रुप भी होता है, आपका फ्रेंड सर्किल भी होता है, तो जब आप कुछ अर्सा साथ रहते हैं तो उसके बाद आपके ग्रुप की, आपके फ्रेंड्स के बीच कुछ वैल्यूज बन जाती हैं, यानी एक अनसेड रूल्स बन जाते हैं, जिसका ये होता है कि आपने इस तरह से बिहेव करना है एक दूसरे के साथ विद इन दैट टीम और विद इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप, या इस तरह से बिहेव नहीं करना है, ये एक्शंस लेने हैं या ये एक्शंस नहीं लेने हैं. वो एक जो है कॉमन सेट ऑफ बिलीव्स होता है कि what are supposed to be done and what are not supposed to be done by the members of that particular team or group. तो वो एक शेयर्ड वैल्यूज का सेट होता है जिसपे म्यूचुअली उसके साथ एग्री करना जरूरी होता है. अ कॉमन सेट ऑफ बिलीव्स एंड प्रिंसिपल्स रूल बन जाते हैं वो. जैसे कि मैंने कहा कि there is used to be an understanding that what we have to do or what we can do within the premises of this particular environment, that could be your team or group, and what we are not supposed to do within this particular scenario. तो वो एक principle बन जाते हैं, a common set of beliefs and principles about how and why the team members will work together. Clear? Yes, ma'am. Thank you. Then mutual trust, yani each and every member is in need to trust upon other member. Confidence between team members that each puts the best interest of the team ahead of individual priorities. यानी कि हमें एक दूसरे के कैपेबिलिटीज पे और एक दूसरे की लॉयलिटी पे ट्रस्ट करना होगा, एंड वी शुड बिलीव दैट एवरी इंडिविजुअल इज डूइंग देयर बेस्ट. Every member of team is doing his or her best towards achieving the goal of team. ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत लाजमी है कि हर एक इंडिविजुअल अपनी तरफ से इनपुट दे रहा है. We have to trust upon them. अगर ये ट्रस्ट नहीं होगा तो वहाँ पे रिफ्ट आ जाएगा. रिफ्ट यानी कि टीम मेंबर्स जो है वो एक दूसरे पे जो है वो मिसट्रस्ट करना शुरू हो जाएंगे, डाउट्स क्रिएट हो जाएंगे. फिर हमें लगेगा कि ए अच्छा काम नहीं कर रहा है, हम अच्छा कर रहे हैं, या सी जो है वो ज्यादा अच्छा कर रहा है, डी जो है वो इतना एफर्ट्स नहीं ले रहा है. सो ये मिसट्रस्ट नहीं होना चाहिए. और म्यूचुअल ट्रस्ट यानी सारे मेंबरान को, तमाम मेंबर ऑफ टीम्स को एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए कि एवरीवन इज डूइंग देयर बेस्ट. Okay, then the third characteristic is inspiring vision, a clear direction that motivates commitment to a collective effort. Yani the vision should be very much clear to every individual, and that needs to inspire them, to motivate them. एक चीज मुझे बताएं कि विजन क्या होता है और विजन और मिशन में क्या डिफरेंस होता है. मैम विजन एक ही होता है कंपनी का, और उसको अचीव करने के लिए डिफरेंट मिशंस बनाते हैं. डिफरेंट मतलब मिशंस में काम करना पड़ता है कि इस ड्यूरेशन में हमने ये मिशन अचीव करना है, इस ड्यूरेशन में ये प्लान्स बनाने होते हैं डिफरेंट. जी जी, एंड विजन एक ही होता है.
So that vision of a team needs to be inspiring for every individual in order to create the commitment amongst them, a clear direction that motivate commitment to a collective effort. क्योंकि टीम में हम सबके एफर्ट्स कलेक्टिव हैं, हम सब ने एक ही मोटिव के लिए काम करना है, तो वो जो विजन है कि इस टीम को फॉर्म करने का मकसद ये है, हम सर्टेन टाइम पीरियड के बाद इसके ये रिजल्ट्स देखना चाह रहे हैं, तो वो विजन नीड्स टू बी इंस्पायरिंग फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ टीम. Then skill or talent, the combined abilities and expertise to accomplish the required task and work productively with others. Combined abilities. Why do we in the need to form teams? शुरू में हमने बात की थी टीम्स की इम्पोर्टेंस क्या है, तो ईमान ने कहा था कि अगर इंडिविजुअली काम किया जाएगा तो वो शायद इतना इजीली और इतना फ्रूटफुली फुलफिल ना हो पाए, इसलिए हम कंबाइंड टास्क करने के लिए टीम्स को फॉर्म करते हैं. तो कंबाइंड एबिलिटीज एंड एक्सपर्टाइज, ए के पास कुछ कैपेबिलिटीज हैं, बी के पास कुछ और हैं, सी के एक्सपर्टाइज कुछ और हैं, डी के ओके. So we were discussing about the skills and talents. We formed the teams in order to get the benefit of combined capabilities and expertise. Because by doing this, by forming the teams, we will be in the position to get the benefit from multiple individuals' skills and expertise capabilities in order to work upon the directions to achieve a particular goal. एक ही टास्क, एक ही गोल पे काम करने के लिए हम मुख्तलिफ लोगों के स्किल्स से, उनकी कैपेबिलिटीज से फ़ायदा उठाने के काबिल हो जाएंगे बाय फॉर्मिंग अ टीम. तो टीम्स बनाने का मकसद बेसिकली यही होता है, टू यूज़ मल्टीपल स्किल्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स to combine abilities and expertise to accomplish the required task and work productively with others. एक दूसरे के साथ मिल के, क्योंकि एक इंडिविजुअल अगर काम कर रहा है वो कॉम्पिटेंट, ही इज कॉम्पिटेंट इनफ. एक अदर कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल अगर उसी टास्क को ज्वाइन करे तो दोनों की कैपेबिलिटीज मल्टीप्लाई हो जाएंगी. यानी कि दो कॉम्पिटेंट लोग अगर मिलके काम कर रहे हैं तो कुछ कॉम्पिटेंसीज ए की कुछ बी की वो मल्टीप्लाई होके एनहांस हो जाएंगी, तो उनकी प्रोडक्टिविटी और अल्टीमेट गोल की तरफ उनके जो कॉम्पिटेंसीज हैं वो एनहांस हो जाएंगी, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी. सो एंड देन रिवार्ड, रिकॉग्निशन ऑफ अचीवमेंट टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स एंड रीइंफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर दैट सपोर्ट टीम्स वर्क. दी जाती है. बिल्कुल, और उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो टेक्निकल होती है कि डिफरेंट रिसोर्सेज को कंबाइन किया जाता है. जैसे टास्क पहले से क्लियर है, ट्रांजिशन प्रोसेस को हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पे ये देखा जाता है टास्क तो पहले से क्लियर था, लेकिन हाउ वी विल बी कैपेबल ऑफ अचीविंग दैट टास्क, उस टास्क को हासिल करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए जिन एफर्ट्स, जिन कैपेबिलिटीज की, जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, उनकी कंपोजिशन किस तरह से हमें बनानी चाहिए ताकि हम वो जो है टास्क अचीव कर सकें. तो टीम्स बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है, टू कंबाइन द रिसोर्सेज व्हिच आर नीडेड, व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव. अब एक क्रिकेट टीम खेलने के लिए जाहिर है हमें एक अच्छा बॉलर चाहिए, एक अच्छा बैट्समैन चाहिए, कुछ अच्छे फील्डर चाहिए, कुछ ऑलराउंडर भी चाहिए. तो ये सारे रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए. आपको जैसे हमने थोड़ी देर पहले ये भी एग्जांपल डिस्कस किया था कि एक कंपनी है जो कि अपनी प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करना चाह रही है, मार्केट रिसर्च करना चाह रही है कि अपनी प्रोडक्ट को वो किस तरह से मॉडिफाई करे या अपग्रेड करे. तो उसके लिए उसको किस तरह की टीम चाहिए होगी, किस किस डिपार्टमेंट से लोग चाहिए,
इंजीनियरिंग प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड इंजीनियरिंग से लोग चाहिए, रिसर्च डिपार्टमेंट से लोग चाहिए, फाइनेंस से लोग चाहिए, प्रोडक्शन से लोग चाहिए। तो ये सारे क्या है, रिसोर्सेज हैं which are needed, and this is the composition which is supposed to be created in order to fulfill the objective. कंपोजिशन ये है कि डिफरेंट चीज़ों को हम किस तरह सिनर्जी के साथ एलोकेट करें कि वो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो अपना अपना काम करें प्रोडक्टिव वे में, in order to achieve a certain predetermined pre-decided goal. सो उस गोल को अचीव करने के लिए जो वसाइल, जो रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, उनको कंबाइन करने के लिए हम टीम्स बनाते हैं, और नॉर्मली वो कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स होती हैं, इसीलिए हम इंडिविजुअल्स की टीम बनाते हैं क्योंकि स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज लोगों के पास ही होती हैं। ओके, गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now stages of team formation. टीम किस तरह से फॉर्म होती है? There are basically 5 stages: forming, storming, norming, performing, adjourning. इस फिगर को देख के कुछ याद आ रहा है? Yes, ma'am. इस तरह की एक फिगर आप पढ़ चुके होंगे पहले पार्ट 1 में, इस तरह का डायग्राम। क्या याद आ Yes. रहा है सरमद, बताइए। मैम बिजनेस में पढ़ा था वो रिसेशन, जब बिजनेस अपवर्ड जाता है और फिर रिसेशन पीरियड में आता है। एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली, बूम, रिसेशन। जी ओके, तो ये एक टीम का फॉर्मेशन प्रोसेस है। सबसे पहले फॉर्मिंग स्टेज, आई थिंक द नेम इज वेरी मच क्लियर। जब हम ये फॉर्मिंग कहते हैं तो उसका मतलब इज वेरी मच ऑब्वियस। yes, ma'am. क्या है कि वो स्टेज तो- जहाँ पे फॉर्म किया जाता है जी मैम। चीजों को। The forming stage involve a period of orientation in getting acquainted, यानी कि acquainted means to get to create familiarity with things or individuals or scenarios or goals, objectives. आप अपना मुतारिफ कराते हैं चीज़ों को उस लेवल पे, फॉर्मिंग स्टेज पे जो है ओरिएंटेशन फेज है और acquaintation फेज है। आपकी फैमिलियरिटी डेवलप होती है पूरे सिनेरियो से, सिस्टम से, चीज़ों से। uncertainty is high during this stage obviously. हर एक चीज नई है, एक नया सेटअप है, एक नई कंपोजिशन के साथ हमने डिफरेंट इंडिविजुअल्स को लाकर खड़ा किया है। पीपल आर लुकिंग फॉर लीडरशिप एंड अथॉरिटी। लोग लीडर्स को देख रहे हैं या जो है सोचा जा रहा है कि किसको लीडरशिप दे दी जाए। तो ये सारा प्रोसेस अनडिसाइडेड और अनसर्टेनिटी के ऊपर होता है इस स्टेज पे। अ मेंबर हु असर्ट्स अथॉरिटी और अ नॉलेज मे बी लुक्ड टू टेक कंट्रोल। टीम जिसको समझेगी कि एक इंडिविजुअल कैपेबल है, वो अथॉरिटी असर्ट करता है, यानी कि वो कैपेबल है कि अथॉरिटी रख सके या जो है वो उस पे आ सके, लीडर की कैपेसिटी पे आ सके, लीड कर सके, तो फिर वो उसको डिसाइड करते हैं फॉर लीडरशिप टीम के अंदर। स्टॉर्मिंग स्टेज, the storming stage is the most difficult and critical stage to pass through. It is the period marked by conflict and competition as individual personalities emerge. Whenever there are multiple minds, whenever there are multiple thought process,
conflicts are definitely expected to rise over there. मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स हैं, डिफरेंट सिनेरियो से उठाकर उनको लाया गया है, तो उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर आएगा. Team performance may actually decrease at this stage because energy is put into unproductive activities. जब एक नया सेटअप होता है, किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए एक न्यूली टीम स्टेब्लिश करी जाती है, तो फोकस होने में, एक सिनर्जी डेवलप होने में बड़ा टाइम लगता है. और वो इसलिए भी लगता है कि उस फेज पे ये क्लियर नहीं होता है, लोग इंडिविजुअल्स की आपस में फेमिलियरिटी नहीं होती है. हम अनप्रोडक्टिव इश्यूज पे बहुत होते हैं, अपनी एनर्जीज को वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि चीज़ें और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो एग्जैक्टली लाइन अप नहीं हुए होते हैं, एग्जैक्टली फॉर्म नहीं हुए होते हैं. मेंबर्स में डिसएग्री ऑन टीम गोल्स, वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमने बात की कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन राइज हो सकता है, हर एक का अपना अपना नुक्ता नज़र होता है. इवन वो गोल्स जो ऑब्जेक्टिव्स हैं टीम के, वो उन में मॉडिफिकेशन कोई करना चाह सकता है. एंड सब ग्रुप्स एंड क्लिक्स में फॉर्म अराउंड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज और एरियाज ऑफ एग्रीमेंट. टीम के अंदर कुछ सब ग्रुप्स हो सकते हैं. Am I need to discuss on that what subgroup actually is? ग्रुप्स के अंदर जो ग्रुप्स होते हैं वो सब ग्रुप्स हैं. यानी कि जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, तो फिर लेट्स सपोज के 50 लोगों की टीम है. अब 3 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स क्रिएट हो गए विद इन दैट टीम. अब ये है कि 15 लोग जो हैं वो एक बंदे के पीछे चले गए, 10 लोग एक बंदे के पीछे चले गए, 25 लोग और एक और बंदे के पीछे चले गए. तो इस तरह से ग्रुप के अंदर, टीम के अंदर सब ग्रुप्स क्रिएट हो जाते हैं, और कुछ सर्टेन ओपिनियंस के ऊपर जो है वो ज़्यादा लोग फोकस करना शुरू हो जाते हैं या हो सकते हैं. To get through this stage, members must work to overcome obstacles, to accept individual differences. Look, whenever there are multiple minds working on similar lines, there are obviously difference of opinion are supposed to be created over there. Lekin the thing what we are supposed to do is to accept individual differences. हमेशा सही और गलत की बात नहीं होती है कि ए सही है और बी गलत है. अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो वी शुड ट्रीट दैट डिफरेंस लाइक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, नॉट द मैटर ऑफ राइट और रॉन्ग, कि एक सही है और दूसरा गलत है और फिर कौन सही है और कौन गलत है एंड सो ऑन. लेकिन ए भी सही है, बी भी सही है. द थिंग इज दैट देयर ओपिनियंस आर डिफरेंट एंड the individuals are in need to accept these differences and then tackle them accordingly. Differences को accept करके फिर उनको उस perspective से sort out करना है कि ठीक है, there are difference of opinion, तो एक फिर हम उन दोनों conflicts में से एक बीच में से कोई रास्ता निकाल सकते हैं without treating any individual that ये right है, ये wrong है. Difference of opinion should be there. The term difference of opinion should be used rather than considering right or wrong. And to work through conflicting ideas on team task and goals. Conflicting ideas को mold करना है, because हमारी जो objective है वो ये है कि हमें उस task को पूरा करना है, या जो हमारा टीम का जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करना है. तो फिर हमें उन कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करते हुए ही आगे बढ़ना होगा. और ये सब स्टॉर्मिंग स्टेज है, जो कि हमारी सेकेंड स्टेज है, जिसके when we will come up with this stage, we will be in the capacity to rise ahead. Teams can bog down in this stage.
वो टीम्स जो स्टेबल नहीं कर पाएंगी या जो कंट्रोल इस सिचुएशन में नहीं कर पाएंगी वो इस स्टेज पे ख़त्म भी हो सकती हैं, डिमोलिश हो सकती हैं, वेनिश हो सकती हैं कंप्लीटली, अगर उन्होंने टेक्निकली इस सिचुएशन को हैंडल नहीं किया तो। और जो कॉन्फ्लिक्ट्स, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स रेज हो रहे हैं, अगर उनको टेक्निकली रिजॉल्व नहीं किया तो फिर वो इस कदर हाइप क्रिएट हो जाएगी कि टीम ही वैनिश हो जाएगी, बॉक्ड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्लियर अप टू दिस? Yes, ma'am. Okay. Then norming stage. If teams get through the storming stage, the lucky one who have came up with that stage, conflict is resolved and some degree of unity emerge. Conflicts खत्म हो जाएंगे, होने लगते हैं one by one, और somehow unity जो है वो बढ़ना या डेवलप होना शुरू हो जाती है टीम्स के अंदर। Interpersonal differences begin to be resolved. इंडिविजुअल्स के आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो somehow जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। And a sense of cohesion and unity emerge. Sense of interdependentness और sense of unity क्रिएट हो जाता है, एक फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि हमने एक ही लाइंस के ऊपर काम करना है, क्योंकि पिछली स्टेज पे जो है कॉन्फ्लिक्ट्स जितने भी थे वो खत्म हो गए और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो गई टीम के अंदर। Team performance increase during this stage as members learn to cooperate and begin to focus on the team goals. उनके जो आपस के वो थे डिफरेंसेस थे वो खत्म होना शुरू हो गए, वो रिजॉल्व होना शुरू हो गए, एंड क्योंकि वो एक्स्ट्रा चीजें जितनी खत्म हो गई तो दे हैव बिकम मच क्लियर एंड मच फोकस्ड टुवर्ड्स देयर गोल्स। जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें थी, जितने कॉन्फ्लिक्ट्स थे, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप रिजॉल्व हो गई, एक सेंस ऑफ यूनिटी डेवलप हो गया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली क्रिएट होना स्टार्ट हो गई टीम के अंदर, एंड नाउ दे have become in the position to focus collectively on their goals. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक साइनर्जी के साथ, एक कोहेसिवनेस के साथ उन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया है अपने गोल्स के ऊपर, अपने टारगेट्स के ऊपर। However, the harmony is precarious and if disagreement re-emerge, the team can slide back into storming. इस स्टेज पे आने के बावजूद अगर हार्मनी डेवलप नहीं हो पाती और अगेन डिसएग्रीमेंट्स आ जाते हैं, री इमर्ज हो जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर री इमर्ज हो जाते हैं, फिर से आ जाते हैं, तो फिर हम जो हमारी जो टीम है वो रिवर्ट बैक हो जाएगी। नॉर्मिंग स्टेज से आगे बढ़ने के बजाय वो स्टॉर्मिंग स्टेज पे यानी पीछे चले जाएगी, एंड वंस अगेन द प्रोसेस will start for fighting against conflict of opinion for the management of team. Got it? Are you there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. And then finally, performing stage. This is the stage for producing the outcomes, actually. In the performing stage, consensus and cooperation have been well established and the team is mature enough, organized and well functioning. जितने भी problems थे inside, internally या externally टीम के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स थे they all have been resolved. अगर कोई टीम फॉर्मिंग से वापस स्टॉर्मिंग पे भी गई है तो स्टॉर्मिंग से अगेन फाइट आउट करके वो फॉर्मिंग पे आने के बाद परफॉर्मिंग पे जब आई है तो वो इस
पोजीशन में है कि they have the individuals, the members have created enough synergy and they are well organized now. They are in the position to well function collectively. Mature enough है, mature enough यानी कि now they are in the capacity to overcome the conflicts or difference of opinion. उनके अंदर एक maturity develop हो गई है in the capacity of team, and now they are no more individuals but a team. There is a clear and stable structure and members are committed to the team's mission. Finally वो phase आ गया है जब जितने भी team members हैं they all are committed sincerely with the mission of the team. टीम का जो गोल है जो अचीव करना है जिसकी वजह से टीम को स्टैब्लिश किया गया था, अब वो फेज है जहां पे टीम के जितने भी मेंबर्स हैं दे ऑल आर सिंसियरली कमिटेड विद दैट मिशन. प्रॉब्लम एंड कॉन्फ्लिक्ट्स स्टिल इमर्ज बट दे आर डेल्ट विद कंस्ट्रक्टिवली. We have already discussed that at this stage the team has become mature enough. So conflicts raise हो सकते हैं, problems raise हो सकते हैं, definitely होंगे, लेकिन now they are in the capacity to deal with them in a constructive manner rather than destructive. यहाँ पे जो difference जो conflicts raise होंगे वो destroy नहीं करेंगे team को या उसकी composition को harm नहीं करेंगे, team की synergy को cohesiveness को harm नहीं करेंगे, लेकिन the members of teams are now in the capacity to handle with all these differences in a very constructive and positive manner. Then adjourning stage. The adjourning stage, most of the team's goals have been accomplished. Performance के अंदर जो performing stage था हमारा, वहाँ पे we have input all our energies and efforts sincerely with maturity, with mutual understanding to achieve the objective, to accomplish the task. So adjourning stage is that stage where actually we have approximately achieved the objective that we are supposed to achieve. The emphasis is on wrapping up final task and documenting the efforts and results. कुछ वाइंडिंग अप एक्टिविटीज हैं जो कि यहाँ पे इस स्टेज पे होती हैं, लाइक फाइनल टच देना, चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन करना, रिजल्ट्स और एफर्ट्स को वाइंड अप करना, सॉर्ट ऑफ. एज द वर्कलोड इज डिमिनिश्ड, इंडिविजुअल मेंबर्स में बी reassigned to other teams and the team disbands. जो existing team है, task accomplish हो गया, activities wrap up हो गई, wind up हो गई, results वगैरह, each and everything has been done by the team members. अगर अब ये होना है कि उन टीम मेंबर्स को कोई दूसरा टास्क असाइन करना है तो मैनेजमेंट विल बी इन द कैपेसिटी टू डू सो एट दिस स्टेज. उनको दूसरे टास्क असाइन किए जा सकते हैं क्योंकि जो एग्जिस्टिंग टीम है, जो करंट टीम है, दैट इज गोइंग टू डिसबैंड एट दिस स्टेज. Whatever they were supposed to do, they have done all these things. They have achieved the assigned targets or objectives. So the teams can be disbanded at this stage. Team जो है वो agreement है या जो contract है वो खत्म हो जाएगा, complete हो जाएगा यहाँ पे. There may be regret as the team ends. So a ceremonial acknowledgement of the work and success of the team can be helpful. जब भी कोई associations, affiliations wind up होती हैं तो एक मिक्सचर ऑफ फीलिंग डेवलप होता है. जैसे आपकी एक टीम है, व्हेन यू विल कंप्लीट योर डिग्री एंड देयर विल बी अ फाइनल डे फॉर यू, देयर विल बी अ मिक्सचर ऑफ फीलिंग फॉर यू, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, सेंस ऑफ ग्रीफ और इस तरह की सारी फीलिंग्स. दुख होगा, खुशी होगी अचीवमेंट की, फ्रेंड्स के साथ अलग होने का ग्रीफ होगा. तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को जो है वो एक
पॉजिटिव टच देने के लिए जो फेयरवेल वगैरह और इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं और उसको सेलिब्रेट किया जाता है, एंड को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसी तरह से जब टीम्स डिसबैंड होती हैं तो उनको भी एक एक्नॉलेजमेंट के साथ, एक वोट ऑफ थैंक्स के साथ उनको जो है एंड किया जाता है या क्लोज किया जाता है। If the team is a standing committee with ongoing responsibility, members may be replaced by new people and the team can go to a forming and storming stage and repeat the development process. Are you there? Yes, ma'am. Okay. If the team is a standing committee with ongoing responsibility, यानी कि अगर टीम की नेचर ऐसी है या उस प्रोजेक्ट की नेचर ऐसी है कि वो एंड नहीं हो रहा, बट इट्स एन ऑनगोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स कीप एग्जिस्टिंग, वो साइकिल पूरे करते रहता है अपना, एक टास्क अचीव हो गया फिर से, तो फिर उस कंडीशन में ये होगा कि वो साइकिल बाय साइकिल जो है वो चलता रहेगा, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, वो सारी स्टेजेस फिर कंप्लीट होगा, एडजरिंग पे आके फिर जो है वो फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग और ये फेजेस चलते रहेंगे। जिस तरह से हमारे लिए डिफरेंट बेचेस आती रहती हैं और जाती रहती हैं और हर बेच हमारे लिए एक टीम होता है, तो वो हमारे लिए प्रोसेस जो है वो फॉर्मिंग से लेकर एडजर्निंग तक चलता ही रहता है। टीम डायनामिक्स. Team dynamics are the behavioral relationship between members of any given team. How a team interacts, communicates, and work together has a dynamic impact on how successful a team is in meeting its goals. यानी कि टीम इंडिविजुअल्स, टीम मेंबर्स जो हैं, जो इंडिविजुअल हैं, उनकी जो विद इन टीम इंटरेक्शन है, उनके जो रिलेशनशिप हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं टुवर्ड्स अचीविंग द गोल्स ऑफ अ टीम। क्योंकि बार बार हमने बात की है कि टीम मीन्स डिफरेंट इंडिविजुअल्स मीन्स डिफरेंट ब्रेन, different behaviors, different human characteristics, and dealing with human behavior is always very tricky and very difficult because human psychology is the most complex thing in the world. You can never be conclusive कि आपने किस इंडिविजुअल से किस वक्त किस तरह से बात करनी है, तो आप कैलकुलेट कर सकें कि ये इस तरह से इस वक्त इस बात पे इस तरह से रिएक्ट करेगा। You can never calculate that. 7 characteristics of team dynamics. Shared purpose. Effective goals should be SMART goals. Have you ever gone through the term SMART goals? Students? No, ma'am. Sarmad, Hanan? Yes, ma'am. Sarmad is not there. Okay. SMART goals कहा जाता है. SMART is being used as an abbreviation over here, where S stands for specific, M for measurable, then attainable, relevant, and time bound. That is known as SMART goals. So अगर चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे टीम हो, चाहे ग्रुप हो, उनके जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, दैट नीड्स टू बी स्मार्ट, स्पेसिफिक हो, मींस के फोकस्ड हो, particularly it needs to be decided particularly specifically कि हमने ये अचीव करना है या ये टारगेट अचीव करना है या ये गोल अचीव करना है। मेजरेबल यानी कि हम
क्वांटिफाई कर पाएं रिजल्ट्स को, आउटकम्स को, हम कैलकुलेट कर सकें, उसको हम कंपेयर कर सकें। लेट्स सपोज कि हम एक सर्टेन स्टेज के बाद ये क्वांटिफाई कर पाएं कि हम किस हद तक कामयाब रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। अटेनेबल यानी कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट नीड्स टू बी डूएबल, ऐसे ना हो कि उन्हें ह्यूमनली अचीव करना पॉसिबल ना हो। रिलेवेंट, टीम की बात कर रहे हैं, टीम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर हमने क्रिएट की है, तो जो ऑब्जेक्टिव हैं वो उस सिनेरियो से रिलेवेंट हों। कोई इंटायरली आउट ऑफ द बॉक्स कोई टास्क हम उठा के किसी भी इंडिविजुअल को ऐसे नहीं दे सकेंगे। यानी कि अगर हम क्रिकेट टीम को कहीं खिला रहे हैं, वी आर मेकिंग देम टू प्ले फॉर अस, तो क्रिकेट टीम से क्रिकेट ही खिलवाएंगे हम, उनसे वॉलीबॉल या फुटबॉल प्ले नहीं करवाएंगे। अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हमने कुछ इंडिविजुअल्स को उठा के एक टीम बनाई है, तो हम उनसे मार्केट रिसर्च ही करवाएंगे या मार्केटिंग से रिलेटेड टास्क कराएंगे, हम उनसे बजटिंग का काम नहीं करवाएंगे। सो टास्क जो है वो रिलेवेंट होना चाहिए एंड टाइम बाउंड। there should be a specific time allocated for every task. आपका एक सेमेस्टर है, सेमेस्टर के अंदर आपने 4 मंथ्स पढ़ना है, उसके बाद आपके एग्जाम्स होने हैं, ये टाइम बाउंड है। हम ये नहीं कर सकते कि आपको छोड़ दें कि आप पढ़ते रहें, जब हमारा मूड होगा तब हम आपसे एग्जाम लेंगे। हर टास्क के लिए एक टाइम बाउंड्री होती है कि दिस और दैट सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर उसको हम वाइंड अप करेंगे, तभी हम अपनी एफर्ट्स, अपने रिसोर्सेज, हर एक चीज़ को अकॉर्डिंगली लाइन अप करते हैं कि एक असाइनमेंट हमें या एक टास्क जो है वो हमें 8 डेज के अंदर कंप्लीट करना है या 1 मंथ के अंदर कंप्लीट करना है या 6 मंथ्स के अंदर ये प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट करना है। अकॉर्डिंगली देयर इज ऑलवेज अ टाइम लिमिट फॉर एवरी टास्क, फॉर एवरी प्रोजेक्ट। देन ट्रस्ट एंड ओपननेस. Trust opens the door to dialogues that can lead to better ideas and more creativity. Trust of team members on for one another. एक दूसरे के ऊपर जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनका ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। Willingness to correct mistake, the most important thing for a good team, for an effective team. An important aspect of accountability is the willingness to acknowledge and correct mistakes when success is dependent on results and is collective. There should be a willingness to correct the mistakes, not to highlight the mistakes and focus upon mistakes when you are working in a team. जब आप टीम के अंदर काम कर रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आपके जो दूसरे टीम मेंबरान हैं, आप उनकी मिस्टेक्स को करेक्ट करेंगे या वो आपकी मिस्टेक्स को करेक्ट करेंगे, बिकॉज योर अकाउंटेबिलिटी इज शेयर्ड वन. योर आइडेंटिटी, योर अकाउंटेबिलिटी इज नॉट इंडिविजुअल बट द शेयर्ड वन. तो यहाँ पे मोटिव ये होना चाहिए कि आप ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की मिस्टेक्स को भी करेक्ट करेंगे, उनको हाईलाइट करके उनको फोकस नहीं करेंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरडिपेंडेंट एंड इंटररिलेटेड इन केस ऑफ टीम. So willingness for correcting mistakes is most important element for working effectively in a team. Diversity and inclusion. Winning teams leverage the different thoughts and ideas held by each member to come up with more innovative and creative solutions. Great. If you find that your team comes up with ideas unanimously, quickly, and often, your team might be experiencing
ग्रुप थिंक व्हिच इज डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। यानी कि अगर आपकी टीम के अंदर डेली बेसिस पे बड़ा क्विकली आइडियाज आते हैं और हर कोई दूसरे के आइडियाज से या उसके से एग्री करता है क्विकली यूनानिमसली, यानी कि सभी एक आइडिया के ऊपर एग्री करें। और ये चीज हाँ नंबर बुधा नंबर लिख 0 टेसो जी जी टीह जी जी 21 692 जी जी ठीक मेहरबानी। नंबर बुधो 0 1300 हाँ 30 जी जी 21 692 मेहरबानी।